tell you one thing. In order to appease sections of the Muslim community, and I'm saying sections, because this is not entire Muslim community. Some sections, some parts, some segments of the Muslim community want Muslim Divorce and Registration Act. I can tell you, educated and progressive Muslims don't want to see their 12-year-old children married to 75-year-old men. Let me tell you, educated and progressive Muslims, allow me to complete, I shall have my say, educated and progressive Muslims, listen to me, you will have to listen to me, open your ears wide and listen to me, I will repeat it, educated and progressive Muslims don't want Muslim women to be treated like second and third class citizens. Same applies to the Hindu community. Muslim women are equal to Muslim men. Like the BJP, there are radicals like the RSS. Forget targeting RSS, yaar. Listen, don't justify. हो गया क्या? Muslim Marriage Act gone. Remove. Deal with it. By the Constitution. Neither by Sharia nor by Mani. क्या Constitution? What Constitution are you quoting? Listen to me. अरे आतिक, listen to me. पहले Constitution पढ़ के आइए मेरे प्रोग्राम में, आपको 2-3 बातें कहता हूं. मेरी बात सुनिए. हमारा ये जो भारत देश है, इसमें कोई पैरेलल सिस्टम अभी चलने वाला नहीं है, अंडरलाइन कीजिए, नहीं है, कभी नहीं होगा. पैरेलल जुडिशियल सिस्टम नहीं चलेगी. We will not have a parallel judicial system for the Muslim community. Muslim community will have the same judicial system, the same law, no parallel judicial system for the Muslim community. And listen to me, आपको आलाप करने की जरूरत है क्या? I don't need आलाप और एको. मैं कह रहा हूँ, आप मेरे. We are on the same page. What you are saying again? No, we are not on the same page. I am saying you can't give licenses to Muslim people to register marriages and divorces separately. All Sanatis are not Hindutva. Okay, listen to me. Now, don't speak over me, please. Even if you're getting excited, first of all, don't get excited. I'll tell you why. Excited तभी हो सकते हैं जब आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं. आप कुछ कर नहीं सकते. डिसीजन हो चुकी है. मुस्लिम मैरिज एक्ट इज गॉन. हो गया. गॉन. What do you mean जिसकी लाठी उसकी भैंस? ये लाठी नहीं है, ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है. अरे कंसेंसस कहाँ है जो प्रधानमंत्री बोले थे? गॉन. मुस्लिम मैरिज एक्ट गॉन. कांग्रेचुलेशंस, गॉन. आप जितना भी बोलेंगे गॉन. देयर इज नो मुस्लिम मैरिज एक्ट. तो कंसेंसस की बात कर रहे थे ना. कंसेंसस कैसे होगा इस देश में? आप सबको जाके पूछेंगे. हिमंत बिस्वा शर्मा हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बोलेंगे आप बांग्लादेश से आए हैं, अच्छा आपको मुस्लिम मैरिज एक्ट चाहिए, अच्छा मैं रखूंगा. ऐसे चलता है क्या? आपने कंसेंसस की बात कही. जब शाहीन बाग में आपने रास्ता रोक दिया तो आपने कंसेंसस की बात कही. आपने कंसेंसस की थी. जब आपके सरजील इमाम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को काट दो, इंडियन आर्मी को वीक करो, आपने कंसेंसस की बात कही. जब आपने बोला, जब आप जिन लोगों का समर्थन करते हैं, आप उन्होंने बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो कंसेंसस हो रही थी वहां पे. क्या कंसेंसस? व्हाट कंसेंसस? व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. दैट्स द कंसेंसस. मुस्लिम मैरिज एक्ट, यू डोंट नीड अ सेपरेट लॉ फॉर मुस्लिम्स इन दिस कंट्री. हमारा प्यारा भारत हमेशा यूनाइटेड रहेगा. हाँ तो यूनाइटेड रहेगा, मगर मैं उसमें अच्छा पहले आप 2 मिनट चुप रहिए. 2 मिनट मुझे कहना पड़ रहा है, बुरा न माने आतिक जी. देखिए women will decide for themselves under section 10 clause C of the Muslim Marriage Act. इसमें कहा गया है a woman does not have to sign. मतलब a woman की कोई राइट नहीं है कि वो खुद साइन करे मैं किसी से शादी कर रही. उसके लिए अगर वो कोट अनकोट पर्दा नशीन है तो उनके लिए कोई गार्डियन साइन कर देंगे, वो शादी हो जाएगी, भेज देंगे उनको, चलो तुम्हारी शादी हो गई. ये हालत है. कैन यू बिलीव इट रतन शारदा? इसका समर्थन हो रहा है हमारे देश में. It is documented interview on TV. The Jamila Nishat, have you supported her? Please tell me. Minor girls being taken away to Middle East
and married off under contract, and no mullah objects to that. Nobody supports the lady who is fighting for the rights. What right you have to talk about women when you don't support them when they're exploited? के अंदर देखिए, उत्तराखंड में देखिए, हो चुका है, हो जाएगा। आपको लगा था कि जो बेसिक एजेंडा है आज आपको जाना चाहते हैं बेचारे। अरे स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग एंड टॉर्चरिंग मुस्लिम वुमेन। अच्छा, नाउ आई वांट टू गेट इन आदिल हसन कि इससे जो टॉर्चर मुस्लिम वुमेन का हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अभी ये बंद हो जाएगा। एंड वी कैनॉट हैव अ सिचुएशन इन विच देर आर टू लॉज, और ये ब्रिटिश लॉ है। यू सी, ब्रिटेन वांटेड टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम, दैट्स व्हाई ब्रिटिश डिड दीज थिंग्स। जिन्ना को पनाह किसने दी? जिन्ना के प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स कौन थे? ब्रिटिश थे। वो हिंदू मुस्लिम डिवीजन करते थे। बंगाल का विभाजन किसने किया? ब्रिटिश ने किया। मुस्लिम मैरिज एक्ट कौन लाया? ब्रिटिश लाए। ब्रिटिश ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मगर अनफॉर्चुनेटली आदिल हसन, आज भी 100 साल बाद कई लोग हैं जो कहते हैं हमें ये ब्रिटिश कानून जिससे हम मुस्लिम वुमेन को एक्सप्लॉइट कर सके, हमें ये बहुत अच्छा लगता है, इसको रखिए। मुस्लिम वुमेन को राइट देने की बात कहेंगे, नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम डिसाइड करेंगे हमारे कम्युनिटी में औरतों को क्या राइट मिलनी चाहिए। नहीं, डू यू हैव एनी कॉन्शियंस? आदिल हसन, टीनेज प्रेगनेंसी रेशियो इज अलार्मिंगली हाई. Teenage girls are being exploited. Teenage girls are made to have during their teen years 3, 4 children. आपके लिए हंसी मजाक की बात हो सकती है. 4,000 people have been arrested for child marriage and POCSO in Assam. This is our country. ये हमारा देश है. इस देश में ये सब अलाउड नहीं होगा. Himanta has taken the decision. Adil Hasan, your response. He's taken the decision, by the way. इसमें कोई nothing is going to go back on this now. अर्नब, आपको मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम बहनों की चिंता है. मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतना चिंतित हैं. और हेमंता विश्वासा ने जो किया है वो अपनी जगह है. देश में हेमंता विश्वासा से भी बड़ी अदालतें हैं. जनता की अदालत है और देश में सुप्रीम कोर्ट है. हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खुला है, आसाम हाई कोर्ट का भी दरवाजा खुला है और जनता का भी दरवाजा खुला है. हेमंता विश्वासा गलतफहमी में नहीं रहे. 15 साल कांग्रेस की दरबारी कर रहे थे, अब भाजपा की दलाली कर रहे हैं. तो जनता सबको जानती है, जनता सबको जवाब देती है. अब रतन शारदा अंकल आए हुए हैं. अब अजीत पवार साहब के खिलाफ आर्टिकल लिख रहे हैं. हम अंकल का कोई सुन रहा नहीं है. आरएसएस में आर्टिकल अंकल का लिख रहे हैं, लेकिन अजीत पवार अभी तक भाजपा में अटके हुए हैं. अब अंकल उस पर कुछ नहीं बोलेंगे. आप इन्हीं के आर्टिकल पढ़ते हैं लगता है. आप सुबह शाम उनके रतन शारदा के आर्टिकल पढ़ते हैं. आप उनके प्रशंसक हैं, आप उनके फैन हैं. शायद सुधर जाएंगे, शायद सुधर जाएंगे. अंकल का डेली पढ़ते हैं. अंकल बहुत ही मैं जो बोलता है वो भी पढ़ी है ना. आपका बंदा जो बोला नुपुर शर्मा को खंबे से टांग दो, वो भी पढ़ी है ना. आप हेमंता विश्वासा 15 साल कांग्रेस. अरे भतीजे, अरे नालायक भतीजे, ओ नालायक भतीजे, मेरे सारे आर्टिकल पढ़ो ना. अबे नालायक भतीजे, सारे आर्टिकल पढ़ो ना. कांग्रेस का सारे आर्टिकल पढ़ो. जहाँ एएमए पोल खोलता वो भी आर्टिकल पढ़ो. कैसे आपका बंदों को इलेक्ट्रिक पोस्ट से लटकाने की बात करता है. आपका कैंडिडेट है, आप तो बात ही मत करो. आपके हैदराबाद के अंदर यंग लड़कियों को उठा के ले जाते थे, उसकी बात करो. आप है हिम्मत तो बात करो. Okay, no more provocation, no provocative comments. अंकल, आपका आर्टिकल हमेशा आप प्रॉब्लम ये है आदिल हसन, हैदराबाद हमेशा पढ़ता हूँ. आप बताओ ना मुझे. अब अजीत पवार, मैं आपका दादा हूँ. इन्होंने आपको नालायक भतीजा कहा. तो बताओ. He said you are नालायक भतीजा. क्योंकि सुनते नहीं हैदराबाद में क्या हो रहा है. हैदराबाद में यंग लड़कियों को उठा के ले जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके. चेक कभी ये बोलेंगे नहीं तो मैं लायक कैसे बोलेंगे. अगर हिम्मत है तो हैदराबाद में जो मिसयूज हो रहा है कानून का, उसके बाद बात करिए आप. चचा जान, उसको सबसे पहले हमने रोक लगाई है. मजाक छोड़िए, मैंने जितना मजाक करना कर लिया. Okay, ladies and gentlemen, this when you can't debate, I think it's a very big move by the Assam government. And as of now, 95% of the viewers of Republic are saying that Himanta Biswa Sarma has done the right thing. Viewers, the biggest story of the day, Himanta Biswa Sarma announcing that it will be struck down. It cannot be struck down. The government has repealed the Muslim Marriages and Divorce Registration Act. You will see. We
meet again on this topic. We will meet again on the topic. It is arbitrary, it is dictatorial. Yeah, for people like you who want, you Dictatorial people like you want to attitude of Mr. exploit Muslim women, so for you it's dictatorial. Public will surely give him. People like you want to see 13-year-old Muslim girls married to 75-year-old men, so you will find it dictatorial. People like you want teenage pregnancies, so you will find it dictatorial. People like you want to treat Muslim women like second-class citizens, so you will find it dictatorial. अरे be progressive आदिल, दूसरों को चाचा जान बोलने से पहले अपनी सोच के बारे में आप सोचिए, अपने सोच को बदलिए, प्रोग्रेसिव बनिए, रीजनेबल बनिए. अरे कुछ नहीं तो लिबरली बन जाओ. Thank you very much, ladies and gentlemen.